آج ہم ظفر محل آئے ہوئے ہیں جو مغل بادشاہ کی سب سے آخری عمارت ہے مغل دور کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہاتھی دروازہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ہم ظفر محل آئے ہوئے ہیں جو مغل تاریخ کی سب سے آخری عمارت ہے، اور دیکھیے کس طرح خستہ حال کا شکار ہے، لیکن اس دروازے کو دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اس دروازے سے ہاتھی بھی جایا کرتا تھا۔ پرانی دلی کی دھند بھری گلیاں، جھاڑیوں میں چھپا ہوا ظفر محل، خالی دروازے، ٹوٹی ہوئی چھت اور بہادر شاہ ظفر کی ایک پرانی تصویر آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہے۔ یہ ہے ظفر محل، مغلوں کا آخری خواب جو ٹوٹ گیا، لیکن اس کی گونج آج بھی ان دیواروں میں باقی ہے۔ آئیے ان خاموش دیواروں کی پکار سنیے اور جانیے کہ ہم نے اپنے ماضی کو کہاں کھو دیا ہے۔ کہتے ہیں اینٹوں کا کیا ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، مگر جب وہ اینٹیں یادوں سے جڑی ہوں، جب وہ دیواریں سلطنت کے سائے میں پروان چڑھی ہوں، تو پھر وہ صرف دیواریں نہیں رہتی، وہ تاریخ کی گواہ بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، یہ کسی بھی طور پر محل نہیں لگ رہا ہے، خستہ حال کا شکار ہے، اور اس کی دیواروں پر دیکھیے کائیاں جمی ہوئی ہیں۔ ہم ظفر محل آئے ہوئے ہیں، دیکھیے اس کی خستہ حالی۔ یہ آخری دور، مغل کے آخری دور کا یہ محل ہے، لیکن آپ دیکھیے کائیاں جمی ہوئی ہیں، ہر طرف خستہ حالی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آرکیالوجی آف سروے آف انڈیا کے تحت یہ عمارت آتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کچھ بھی نہیں، بالکل خستہ حال ہے۔ اس عمارت کو دیکھیے، کہیں سے یہ لگ نہیں رہا ہے کہ یہ محل ہے، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ مغل دور کا آخری محل ہے۔ یہاں سے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیے مزار بھی دکھ رہا ہے، لیکن یہ ایسا خستہ حال ہے کہ کبھی بھی آپ اگر لاپرواہی سے چلیں گے تو آپ گریں گے تو آپ کو کافی نقصان ہو جائے گا۔ یہ یعنی دیکھ کر کے آپ کو چڑھنا ہے، اور جیسے ہی اوپر آ رہے تھے تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی آپ اوپر نہ جائیں، کیونکہ یہ اوپر جانے کا مطلب ہے کہ بہت خستہ حال ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اس کی حفاظت کرتے اور اس کی یعنی اس نشانی کو سمو کے رکھتے ہیں، سجو کے رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور برا ہوا ہے، اور یہ مستقل خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ دیواریں جو سلطنت کے سائے میں پروان چڑھی ہوں تو ان دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے، ان دیواروں میں یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں، لیکن آج جس ظفر محل میں ہم بیٹھے ہیں وہ محل خستہ حال کا شکار ہے، اور وہ ماضی کا ایک ٹپکا ہوا آنسو معلوم ہوتا ہے۔ یہ ظفر محل ہے۔ آپ جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کھنڈر میں آیا ہوں۔ اس کو محل کہنا کہاں تک صحیح ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ آئیے، آپ بھی دیکھیے، آپ سمجھیں گے کہ محل کسے کہتے ہیں۔ اگر محل یہ ہے تو پھر محل کیا تھا۔ یہ ظفر محل میں بنائی گئی موتی مسجد ہے، اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، بالکل سفید پتھر سے یہ بنائی گئی مسجد ہے، اور اس کی لیکن یہاں نماز نہیں ہوتی ہے بہرحال، لیکن آپ دیکھیے مسجد بہت چھوٹی سی یہ بہادر شاہ ظفر نے بنوائی تھی موتی مسجد، یہ دیکھیے، لیکن کھنڈر ہو چکی ہے۔ یہ کہنے کو تو ظفر کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، لیکن ایک ناکام بادشاہ کی کہانی ہے۔ بہادر شاہ ظفر وہ جس کی تمنا تھی یہاں دفن ہونے کی، لیکن اسے زمین نہ مل پائی، اور وہ
रंगून में दफन हुए। कोई पूछने वाला नहीं है। अब बताइए क्या, देखिए मनोहर भाई आप बताइए क्या 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 लाए हैं अमल हो, क्या किया जाए जो इस इमारत की देखभाल हो, किस तरह हुकूमत इस तरफ तवज्जो करे, कुछ समझ में नहीं आ मेरे रहा। ख्याल में जब ये आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अंडर में है, यानी कि आसार क़दीमा एक नाकाम बादशाही सही, लेकिन एक पुरानी विरासत तो सही, पुरानी विरासत तो मानी जाती है। इसको गवर्नमेंट अपने अंदर में ली तो है, लेकिन इसके मतलब कि हिफाजत का बंदोबस्त नहीं की हुई है, ऐसे खुला हुआ छोड़ दिया गया है। तो जहाँ पे कैसे कैसे यानी कि क्या इस हिफाजत का क्या तरीक़ा हो सकता है? हिफाजत का तरीका ये हो सकता है कि इसमें कुछ मरम्मत के काम कर दिए जाएँ और विजिटर के लिए अलाउ कर दिया जाए। कुछ इसमें टिकट भी लगे, थोड़ा सा पैसे दे के लोग आएंगे ना, जी जी उसमें अनचाहे लोग नहीं आएंगे। जी जी। जिसको विज़िट करना होगा, जिसको पुरानी विरासत देखनी होगी, जिसको क्या कहते हैं पुरानी विरासत से ताल्लुक़ होगा, मोहब्बत होगी, कुछ या तारीख़ को जानना चाहेंगे, वो लोग आएंगे, कुछ पैसे दे के, कुछ टिकट दे के देखेंगे और एनालाइज़ करेंगे, पुरानी तारीख़ को याद करेंगे कि क्या बादशाह थे, क्या करके गए। और जबकि बहादुर शाह ज़फ़र की एक आखिरी उम्मीद थी कि यहाँ पे एक जगह उन्होंने बनवाई थी कब्र के नाम की, अपने लिए कब्र के तौर पे, जो उनके उनके मुक़द्दर में नहीं थी, उनको ना मिल सकी। इसलिए उन्होंने कहा कि 2 गज़ ज़मीन भी मिल ना सकी कुएं यार में। अब देखिए वाकई बात तो मनोहर भाई सही कह रहे हैं, लेकिन अब यानी अब क्या किया जाए, मतलब अब हम ही कुछ कर सकते हैं। अच्छे तादाद में लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और अवेयर करें, लोगों को बताएं कि हमारे पास हमारे यानी हमारी विरासत में एक ऐसी चीज़ भी है, नायाब चीज़ है, और यानी ये अब मिलेगा नहीं, तो इसकी हिफाजत कैसे हम करें। ये अगर हुकूमत नहीं तो आवाम अवेयर हो, आवाम बेदार हो। जब तक आवाम बेदार नहीं होगी इसका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं वो इतने बेदार नहीं हैं। आप आएंगे, आप आवाज़ उठाएंगे तो हुकूमत तक बात पहुँचेगी, और बात जब पहुँचेगी तो कभी न कभी काम भी होगा। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं वो जगह ख्वाब के टूट जाने की अलामत है। वो जगह ऐसी है जहाँ उम्मीदें टूट जाती हैं, जहाँ ख्वाहिशें बिखर जाती हैं। ये वही जगह है बहादुर शाह ज़फ़र जिसमें दफन होना चाहते थे। वही ज़मीन थी जिस आबाई वतन में वो दफन होना चाहते थे, लेकिन वो दफन नहीं हो सके और उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें म्यांमार रंगून भेज दिया गया, बर्मा। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुएं यार में। जी हाँ, आज हम खड़े हैं बहादुर शाह ज़फ़र की बनाई हुई मस्जिद, मोती मस्जिद में। काश कि बहादुर शाह ज़फ़र को 2 गज़ ज़मीन यहाँ मिल जाती, और अगर यहाँ वो 2 गज़ ज़मीन मिल जाती तो शायद यहाँ भी लोग आते और इस मुग़ल दौर की आखिरी निशानी को देखते और उसकी हिफाजत होती। मोती मस्जिद, बहादुर शाह ज़फ़र ने मोती मस्जिद बनवाई थी। मोती की तरह बिल्कुल सफ़ेद है और संगे मरमर से तराश कर इसे बनाया गया है और इंतहाई ख़ूबसूरत है। लेकिन यहाँ नमाज़ें नहीं होती और यहाँ अज़ानें नहीं दी जाती। ये अलग बात है कि बग़ल में बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, तो जिसकी वजह से अज़ान की आवाज़ तो आ जाती है और इसकी दीवारें अज़ान की आवाज़ें सुन लेती हैं। ये देखिए मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद का मेहराब है। कितना खूबसूरत है, कितना दिलकश है, लेकिन जब बारिश होती है तो शायद पानी टपक रहा होता है। और देखिए अभी भी बिल्कुल इसे तन्हा छोड़ दिया गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं। उसके बावजूद इसकी खूबसूरती अब भी बरक़रार है और अब भी दिलकश दिखती है। ये अलग बात है, अंदर से काफ़ी खस्ता हाल तो नहीं कह सकते, गंदी हो गई है। ज़ाहिर है जब इसकी सफाई नहीं होगी तो वो किस हालत में रहेगी। 1857 की नाकाम बगावत के बाद आज़ादी की किरण बुझ गई थी और ज़बरदस्त नाकामी के बाद बहादुर शाह ज़फ़र कैद कर लिए गए थे।
और उनके 3 बेटों को गोली मार दी गई थी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। आज हम एक ऐसी मस्जिद में बैठे हुए हैं जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। भाई अगर आप ज़फ़र महल आ रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि 6 बजे से पहले, बल्कि 5 बजे से पहले निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बुरी हालत है। अगर आप कहीं अंदर फंसे हुए हैं तो ये गेट बंद कर देते हैं और इतना बड़ा गेट आप ना तोड़वा सकते हैं और उसके ताले इतने बड़े हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, अंदर फंस जाएंगे। बहुत मुश्किल से हम लोग निकले हैं। दरगाह पर हम लोग गए, बगल में है, वहाँ बात की और उसके बाद हम लोग बहुत मुश्किल से निकले हैं। यहाँ के मकामी लोगों ने मदद की तब जा कर के हम निकले हैं, वरना अंदर भूल भुलैया में आप फंस सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि अगर ज़फ़र महल आप आ रहे हैं तो 5 बजे से पहले हमेशा निकल जाएं, वरना फंस जाएंगे। और सालिम भाई कैसा लग रहा है? आप ज़फ़र महल में फंस गए थे। अब जान में जान आई है। अच्छा। तो एक भाई मिले थे, अपने सिख भाई थे। अच्छा। उन्होंने हेल्प किया और कुछ बच्चे भी थे। अच्छा। तो सीढ़ी लाए, हाँ। सीढ़ी में सपोर्ट किया। सही। उसके बाद ये कपड़ा वगैरह सब गंगा करके फिर हम लोग बाहर आए। जी। जब बाहर आए तो जान में जान आई, वरना लगा कि आज रात तो लग रहा था ज़फ़र महल में मेज़बानी होती है अच्छे से, होती चमगादड़ों से। और आपका क्या ख्याल है मन्नू भाई? आप कैसे निकल गए? हो गया नो कमेंट।